जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अच्छा आप किसी बोलो, आप ही बोलो। प्रभु जी कहाँ गए? आप दो सोलो बोलो, आ जाओ। हाँ बिजू बोलो, माइक दे अब बोलो। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So we are very fortunate that we have among us His Holiness Sripad Bhaktivedanta One Maharaj, a very senior disciple of our dearmost Shri Gurudev, and under his guidance he has studied the Vedic scriptures, all our Gaudiya Siddhanta in so much depth, and now sharing it with the devotees all over the world. So Maharaj has ordered me to say a few words, even though I'm not qualified, but just to honor his order, I'll say a few words. Maharaj yesterday started speaking on Srimad Bhagavatam and started from the first verse, and then he started on the second and the third verse. Srila Suta Goswami, in the second chapter of Srimad Bhagavatam, he says, Nashta prayeshu abhatreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttam shloke bhaktir bhavati naishtiki. So Maharaj was explaining that how we should hear from saintly people and what kind of saintly people. Nirmatsaranam satam. Those who have no jealousy in their heart and those whose hearts are imbued with pure love for Krishna. And coming in this lineage of the reciter of Srimad Bhagavatam, Shri Shukadeva Goswami.
So Sut Goswami is saying that one who does so, Nashta Prayashu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya, that one who hears from such saintly people, here's what? Srimad Bhagavatam. Bhagavatam Sevaya. So there are two types of Bhagavatam, Bhakta Bhagavat and Grantha Bhagavat. And even though, just like Maharaj was explaining yesterday, there's so many reciters of Srimad Bhagavatam. Nowadays, actually, you can do a course to become a Bhagavatam speaker. It's a short course, and you can become a good speaker and become famous. But that's not how one becomes the speaker of Bhagavatam. One has to be coming in the line, in a disciplic line, and then has to practice this. Before one preaches, one has to also practice. So one who is, and Krishna describes throughout Srimad Bhagavatam, there is so much description of who is actually a real devotee. One who has no desire other than to favorably serve Shri Krishna. No desire other than that. So if one has desire to even speak Srimad Bhagavatam for anything other than to glorify Krishna and Krishna alone and his devotees, then that is not a real Bhagavat. So again, Maharaj as explaining, Nirmatsana Nam Satam. So when we speak Srimad Bhagavatam with a desire to glorify our own self or anyone other than Krishna, then that is not, one does not get the real essence of hearing Srimad Bhagavatam. But hearing from such a devotee who is a real Bhagavat, if one hears Granth Bhagavatam, then what he says, Nashta Prayashu Abhadreshu, that everything that is Abhadra within one's heart is destroyed. So what is Abhadra? Abhadra means, Bhadra means good, Bhadra also means civilized. So Abhadra means something which is not good, or which brings one down to the level of an uncivilized person. So the Vedic culture was very high. So the qualities of being truthful, honest, clean, shuchi, like there's so many different qualities are there which are those who are civilized. And especially they are above the Kam Krodh, Kam, lust, greed, and jealousy, false ego. These are the things we see rampant all around us, right? In today's world, the more one is running after sense gratification, the person is considered very, very high. But the Vedic culture is that one should subdue these desires. Why? Because these bad qualities, Atul, maybe you want to close the door. So these bad qualities, they prevent us from understanding who we are and who the Supreme Lord is. So just like if there is water which is very dirty, very polluted, right? That polluted water, you cannot see your image in there, and consuming that dirty water will be very detrimental to one's health. So if we have a polluted heart, then neither we are happy in this world, and neither we will attain happiness after this, because with a polluted heart we will only do polluted things. So there are so many different ways people try to remove this dirt. So many different yoga systems are there. But here Sutta Goswami is saying none of those yoga systems are perfect, because the only way one can remove this dirt is by Nityam Bhagavata Sevaya, by hearing Srimad Bhagavatam, which is nothing but the glories of Krishna's, his pastimes and his devotees. When one hears that from the lotus lips of a pure devotee, then all of these abhadras, without making any special effort, see, that is the beauty of hearing Shravanam, that one doesn't have to make any special effort. All one has to do is sincerely hear. And if one does so, then Nityam Bhagavati Uttam Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki,
then bhaktir bhavti naishtiki, then not only all these unwanted desires go away, then also one develops naishtiki bhakti. Naishtiki bhakti means? Naishtiki bhakti is? Unwavering. Unwavering. Eknishtha means which is one pointed. So one pointed exclusive devotion to Shri Krishna. So there's so many different types of bhakti people do. First of all, understanding what is bhakti is also not understood, right? Bhakti of Durga, bhakti of Kali, bhakti of Hanumanji, bhakti of Shivji. So many different types of bhaktis are there, right? But bhakti is, those are not considered bhakti. That is not devotion. Bhakti is only for Bhagavan, and Bhagavan is only Shri Krishna. So, but getting to this point of understanding is not easy. Especially those of us who have come from the background, from Indian background, very, very difficult to understand this point that bhakti is only in relation to Bhagavan and Bhagavan is Shri Krishna. So this is called Naishtiki, Eknishtha, unwavering. That one does not sway, one's understanding of this concept is not swayed by any kind of other philosophies or thoughts or ideas or religious concepts. So hearing from a pure devotee, one is able to develop this determination. So, and especially if it's a high-class devotee, right? So just like when you filter water, if your filter is not very good, then the dirt will still pass through, right? So if you have high-class devotee association, then hearing from such devotees, that's like a high-quality filtration. So all the bad qualities will filter away, and one will without a doubt will develop prema bhakti for Krishna. So we are again very fortunate that we have such a personality among us, Sri Padman Maharaj, and I pray that we can hear from him with rapt attention and while he's here, and hopefully he'll be coming back again and again very often. Hare Krishna. अच्छा बोलो हैं? आप बोलो थोड़ा सा शब्द। आपको समझ आ रहा है? हैं? आपको समझ गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ वृन्दावै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। भक्ताविहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्यै कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं
वदामि राधां करुणावराद्रा ततो ममान्नस्ति कृतिर्न कापि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ट्रांसलेट कौन करें? ये कर रहा है माइक है सब हिंदी में बोल रहा हाँ? हिंदी में बोल रहा क्योंकि सब कनेक्टेड है माइक। अच्छा, सब कनेक्टेड है। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं मेरे सन्यास गुरु एवं शिक्षा गुरु नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतमाद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी का अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतसमाध भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील गोविंद गोस्वामी महाराज श्रील भक्ति रख श्रीधर गोस्वामी महाराज श्रील भक्तिमतपुरी गोस्वामी महाराज श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णववृंद मातृवृंद गुरुगत सज्जन वृंद हरि कथा पिपासु सूत्रवृंद सभियों के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार। अभी अभी हमारे विष्णु प्रभु जी ने बहुत सुंदर रूप में और सहज सरल रूप में और अति अल्प समय में भागवत की सार कथा को उन्होंने बताया। बहुत अच्छा भी लगा मुझे। स्मितंत सारंच सार वस्तु जो है अल्प समय में जो बोलते हैं उसके ही कहा जाता है, वाग्मी वक्ता कहा जाता है। ये भागवत की तात्पर्य है क्या चीज? हम क्यों भागवत क्यों अध्ययन क्यों करते हैं, श्रवण क्यों करते हैं? व्यासदेव जी ने चार वेद रचना की, फिर उन्होंने वेदांत भी रचना की, वेदांत सूत्र भी रचना किया, फिर उन्होंने अनेक उपनिषद भी रचना की, फिर आगे जाकर के फिर उन्होंने पुराण भी रचना की, 17 पुराण तो रचना कर दी। तथापि उनके हृदय में प्रसन्नता नहीं हुई। अंत में नारद ऋषि की कृपा से व्यासदेव जी ने यह अंतिम जो पुराण जो है इस श्रीमद् भागवत को प्रकट कराया। सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतम विश्वते। समस्त वेद पुराण उपनिषद के सार यह है ये श्रीमद् भागवतम। अर्थं ब्रह्मसूत्राणां भारतार्थ विनिर्णय। गरुड़ पुराण में भी इसमें भी महिमा भी वर्णन करते जा रहे हैं। यह श्रीमद् भागवतम गायत्री भाष्य की कहा गया। अर्थं ब्रह्मसूत्राणां भारतार्थ विनिर्णय। ब्रह्मसूत्र के भाष्य ही कहा जाता है। और महाभारत की सारे निचोड़ जो वस्तु जो है ये श्रीमद् भागवत में निर्णय करके दे दिया।
जैसे सुप्रीम कोर्ट के जैसे राय अंत में दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार ये श्रीमद् भागवत ऐसे एक अमूल्य ग्रंथ है। समस्त वेद पुराण उपनिषद समस्त शास्त्र के निचोड़ सार संग्रह करके उन्होंने ये प्रकाश कर दिया। इसलिए सर्व वेदांत सारं ही श्रीमद् भागवतम मिश्रते। ये श्रीमद् भागवत की कथा में जिसको थोड़ी सी रुचि हो जाता है और किसी कथा में उसको रुचि नहीं है, क्योंकि कोई ये सर्व उत्कृष्ट वस्तु के प्राप्त करे, निकृष्ट वस्तु के कौन ग्रहण करेंगे? समझ में आ रहा है? यदि आपके सर्व उत्कृष्ट वस्तु प्राप्ति मिल जाए, राबड़ी, खीर, रसमलाई, इसे सर्व अत्यंत स्वादिष्ट है, सुमिष्ट ऐसे मिष्ठान्न आपके प्राप्ति हो जाए तो गुड़ कौन खाएगा भाई? गुड़ समझते हो? है? बुद्धिमान जो व्यक्ति जो होता है वो सर्वोत्कृष्ट प्राप्ति वस्तु की प्राप्ति करने से निकृष्ट वस्तु के अपने आप ही वो छोड़ देते। इसलिए कह रहे सर्व वेदांत सारं ही श्रीमद् भागवतम मिश्रते। समस्त वेद पुराण उपनिषद के सार निचोड़ वस्तु है ये श्रीमद् भागवतम। ये श्रीमद् भागवत हमें संदेश दे रहे हैं। क्या संदेश दे रहे हैं? या हम पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्ति करें। और पुराणों में धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में बताया गया। नाना देव देवी की भी महिमा भी बताया गया। स्वर्ग आदि अनित्य वस्तु के प्राप्ति करने के लिए उपाय भी बताया। किंतु श्रीमद् भागवत में ऐसे वस्तु के अनुसंधान दे रहे हैं धर्म अर्थ वासना की त्याग देकर के यहाँ तो मुक्ति के भी निरसन कर रहे हैं, मुक्ति के भी त्याग दे दिया है। पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम की ही संदेश दे रहे हैं। और वो पंचम पुरुषार्थ जो कृष्ण प्रेम वो सर्वोत्तम क्या वस्तु है? राधा प्रेम की बारी में बता रहे। यद्यपि आप कहें तो दूसरी पुराण में भी तो राधा जी की महिमा, ब्रज की महिमा तो वर्णन किया गया, किंतु वो पुराण में जो कथा कहा गया उसको वास्तव रूप में ठीक ठीक से वर्णन नहीं किया गया। श्रीमद् भागवत में ऐसे सुंदर सुचारू रूप से इन सीक्वेंस प्रेम की एक ऐसे संदेश दे रहे हैं जिसे और किसी शास्त्र में नहीं है। इसलिए कहते हैं निगम कल्पो तरुर गलित फलम सुख मुखाद अमृतम द्रव संयुतम पीबत भागवत रस मालयम मुहुरो रसिका भूवि भावुका। एक निगम वेद रूपी कल्प वृक्ष की ये श्रीमद् भागवत क्या है? अत्यंत स्वादिष्ट सुमिष्ट रसालो प्रपक्व फल कहा गया। ये श्रीमद् भागवत काल मैंने इसके ऊपर भी बताया था। और ये फल में कोई गुठली भी नहीं है, यहाँ तक भी छिलका तक भी नहीं है। छिलका होते हैं ना इसके, वो भी नहीं है। केवल रस रस मालायम, इतने सुंदर मधुर रस भरा हुआ है। और वो फल इतने प्रपक्व पक गया और पक करके फिर उसे क्या है सुख पक्षी के चोंचों के द्वारा वो स्पर्श हो गए। और वही फल जो है इस धराधाम में प्रकट हुए। कैसे? ना हमारी गुरु परंपरा से। काल यह भी मैंने कहा था, ये फल यदि पक जाए और पक करके धरती मिट्टी पर जमीन पर गिर जाए तो वो फट जाएगा। इसलिए ऐसे एक सुंदर स्वादिष्ट फल वो कैसे है? हमारी गुरु परंपरा से, डिसिप्लिन सक्सेशन।
गुरु परंपरा से आए है? और वो फल को कौन आस्वादन कर रहे हैं? सभी आस्वादन कर नहीं पाएंगे। अधिकारी भी दिखा रहे हैं, अधिकार प्रकरण क्या बताए? अधिकार प्रकरण दिखा रहे हैं। सभी की कथा में रुचि नहीं होगी। सर्वोत्कृष्ट जो वस्तु जो है इस सबके रुचि नहीं होते है। देखो, बुरा मत मानिए, ग्रोसरी के दुकान पर जो सब जाते हैं चावल दाल आटा सब्जी आदि खरीदने के लिए है, सोने के दुकान में कितने लोग जाते हैं बताओ? गुरुदेव उदाहरण देते थे है? पैसे वाले जाएंगे, हैं? पैसे वाले जाएंगे बड़े है? और उससे जो है सोने दुकान से और डायमंड आदि जो गए है उसके पास कौन जाता है? आप बताओ। हम चावल दाल सब्जी आदि हर रोज खरीद करके जाते हैं। चलो आप लोग एक साथ में खरीद कर लेते हैं, एक हफ्ता के लिए फ्रिज में रख देते हो है? क्यों? तो आपको तो महीने तो 2-3 बार जाना पड़ता है कि नहीं? सोने के दुकान में कब आप जाते हो बताओ? साल में 2 साल में एक बार हो सकता है, आपके बेटा बेटी के शादी के समय धनतेरस के जाते हो। ये बता, सही बता रहे हैं। धनतेरस होता है ना, उस समय सोने चांदी लोग खरीदते हैं बेचते हैं। नहीं बता, ठीक बता रहे जाते। किंतु डायमंड हीरे जहरत डायमंड के दुकान में कौन जाता है? आज शाही लोग जाते हैं। शाही समझते कि नहीं है? राजा आदि महाराज अरब कंट्री में बहुत पैसे वाले है, बहुत लोग थोड़ी जाते हैं, साल में बस 2 साल में 5 साल में 10 एक बार। मेरे कहने की तात्पर्य है, इस श्रीमद् भागवत ऐसे अनूठा ग्रंथ है। इस ग्रंथ में जो रस भरा हुआ है वो रस कौन आस्वादन करेंगे? इसलिए कहते हैं रसिका भूमि भावुका है। रसिक और भावुक जन ही इसको आस्वादन कर सकते हैं, सभी लोग नहीं। लोग की रुचि नहीं हो। संसार के लोग धर्म अर्थ काम त्रिवर्ग के लिए ही चाहते हैं। धर्म, हम संसार धर्म पालन करें, अपने माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार के पालन पोषण करें, जिसको हम कहते हैं संसार धर्म का देते हैं, है कि नहीं? विवाह आदि करके धर्म हम पालन करते हैं। अर्थ धर्म अर्थ काम, अर्थ हम संग्रह आदि करते रहते हैं। अर्थ इसलिए संग्रह करते हैं सुख प्राप्ति हो और दुख नाश हो। कर्मण्यो भी आरोमानम दुख होते ही सुखाय च पश्चित पाको विपर्य मिथुन चारिण। संत सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं, महाराज परीक्षित, इस संसार के लोग धन कमाते हैं किस लिए? 2 कारणवश, सुख प्राप्ति और दुख के विनाश के लिए। किंतु आता है क्या चीज? दुख दुख ही आ जाता है। सुख सामान्य रूप में कुछ प्राप्ति होता है, मिलता रहता है। आप बताइए, 7 दिन में आप कितने दिन काम करते? 5 दिन काम करते हैं, 2 दिन आपके पास रहता है, वो 2 दिन अब फिर आपके बाजार में जाना, ये करना वो करना, काम करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। कहाँ विश्राम कहाँ? फिर इसलिए कहते हैं हम जो धन जो कमाते हैं कष्ट होता है, और उससे भी अधिक कष्ट किसमें होता है? धन को रक्षा करने में है। श्रीमद् भागवत में सारे सुखदेव गोस्वामी बात करें, बोले धन कमाने में जितने कष्ट नहीं है उससे दुगना कष्ट होता है। किसे? धन को सुरक्षित करना, संभालना है। आजकल तो लोग कितने हैं, पैसा आपको उठा लेंगे, क्रेडिट कार्ड लगा दो, कैसे कैसे उठा लेते हैं आपके। हाँ, हम देखा सुन, लोग बोलते हैं, हमें तो पता ही नहीं है, सुनाते हैं। आपका पूरा क्रेडिट कार्ड पूरा खाली कर देंगे, पता नहीं। चोर डकैत बदमाश गुंडे लगे रहते हैं,
आप बताओ। इसलिए कहते हैं सुखदेव गोस्वामी पाद वही कह रहे हैं, बोले धन कमाने में जितने कष्ट नहीं है, धन रक्षा में और भी अधिक कष्ट है। इसलिए कर्मणो की मानन दुखोति सुखाय च पश्चित पाको विपर्य मिथुन चाहिए लेना। दुश्चिंता में सब पड़े हुए हैं। चिंता 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 नहीं, चिता है। चिंता और चिता एक ही है। समझ में आ रहे हैं? बोलो चिता समझते कि नहीं? है ये देखो, चिता तो एक बार ही उसे लेटा दिया जाता है, आग जला दिया, छाई भस्म हो गया, जो हो गया वो गया है। किंतु चिंता ऐसे है, जब तक हमारे सांस चलते हैं चिंता वही रहते हैं, बात जलते रहते हैं। अरे चिंता नहीं है, चिता है। ये तो जलते जा रहे। हाँ बताओ, कितने दुश्चिंता में सब हम पड़े हुए हैं। जिसके पास धन है वो भी चिंता में पड़े हुए, और जिसके पास धन नहीं है वो भी चिंता में पड़े हुए। इसलिए करे क्या है? आप बताओ। इसलिए धर्म अर्थ काम अनेक प्रकार हृदय में वासना आदि जगी हुई, अनेक अशेष कामना हृदय मारे मोर क्रोधित अम्ब पराय। भक्तिमान ठाकुर ना जी ने कितने वासना आदि लगी हुई है, इच्छा आदि कितने हैं, क्या करें? लाभ पूजा प्रतिष्ठा के लिए हम कितने दौड़ रहे हैं। मैं अपने दूसरे के सुनाने के लिए अपने मन को मैं सुनाता हूँ। ये मन, कहाँ तुम दौड़ रहे हो? प्रतिष्ठा आशा अधिष्ठा सुपचरमणि में हृदय नटे कथम साधु प्रेमना सुशीर्णु मन शिक्षा मिले। रघुनाथ दास गोस्वामी लिख रहे, प्रतिष्ठा आशा अधिष्ठा सपच रमणी चंडालिनी के भांति कितने हमें सताए। प्रतिष्ठा आशा अधिष्ठा सपच रमणी। तो ऐसे जब रहे तो शुद्धा भक्ति कहाँ हमारे हृदय में होगा? प्रतिष्ठा आशा अधिष्ठा सपच रमणी में हृदय नटे कथम साधु प्रेमना। कहाँ वो प्रेम, साधु प्रेम, शुद्धा प्रेम कहाँ उदित होगी? बोलना तो बहुत सहज होता है, किंतु वास्तविक जीवन में आचरण में बहुत कठिन हो जाता है। भजन की एक ऐसे स्थान पर चलते हैं, दिखाई पड़ता है सब, वास्तविक सत्य होता है। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ वृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम दशा, ये शास्त्र में कहा, इसे क्रम कहा गया। दिस द सीक्वेंस। एक जन श्रद्धा उत्पन्न करने में कितने कठिन होता है। श्रद्धास्तु अनन्य पायो वर्जनम भक्तिमुखी चित्तवृत्ति विशेषः। श्रद्धा की जो डेफिनेशन दे रहे, समस्त प्रकार की इच्छा को प्रत्याग दे करके श्रद्धा तो अनन्य पायो वर्जनम, कर्म, ज्ञान, योग, तपस्या की अथवा लाभ पूजा प्रतिष्ठा जितने प्रकार की है अनर्थ, उसे सब त्याग दे करके एकमात्र भक्ति उन्मुखी चित्तवृत्ति होनी चाहिए। प्रभु जी ने बहुत सुंदर सूक्ष्म रूप में बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा है। आसान गुरुदेव की संग किया, गुरुदेव की हरि कथा श्रवण किया और बहुत शास्त्र भी ज्ञान अध्ययन किया। इसलिए प्रभु जी ने बहुत सुंदर, हमारे विष्णु प्रभु ने अच्छे शब्द बताए गए। ये वास्तव शुद्धा भक्ति हम कैसे प्राप्ति करें? जल कहने से तो अनेकों जल होता है। विशुद्ध जल होता है, मिश्रित जल होता है, कई प्रकार की जल होता है। पानी पीने के कहने से तो पानी, कौन सा जल पिएंगे आप? पानी पीना है। विशुद्ध जल, शुद्ध निर्मल जल। तात्पर्य में इसलिए कह रहे हैं, भक्ति तो लोग करते हैं, सभी भक्ति कर रहे हैं,
हम सबकी सम्मान देते हैं। हरि रेवो सदारत्न सर्वदेवे सरेश्वर इतरे ब्रह्मरुद्रद्दा नावज्ञा कदाचन। क्षमा करें, श्लोक आ जाता है ज्यादा है। सारे देव देवियों की जो है आप सम्मान करें है, क्योंकि सारे देव देवियां भगवान की आज्ञावाही सेवक सेविका कहा जाता है। शिव, काली, दुर्गा, वायु, वरुण, चंद्र, सूर्य, जितने देव देवियां हैं सब भगवान के आदेश से ही। राम और शिव किसमें आ जाते हैं? क्या जी? राम और शिव नहीं, रामचंद्र तो स्वयं भगवान है, वो थोड़ा बाद में आपको बताएगा। शिव तत्व भी आपके बाद में बताए, रामचंद्र बहुत अच्छी बात आपने प्रश्न किया, थोड़ा बाद में बताएगा क्योंकि प्रसंग में। ये जितने देव देवियां हैं ये उन्होंने बताया, एक विष्णु तत्व और एक देवता तत्व मिश्रित हम कर देते हैं, किंतु नहीं है, ये विष्णु तत्व है। रामचंद्र विष्णु तत्व में आता है। चलो आगे की कथा सुनाते। भगवान की आज्ञावाही सेवक सेविका कहा जाता है। भागवत में श्लोक में जब वरुण रुद्र मरुतस्तावंती, इस श्लोक में स्तुति आदि होती जा रही, जिनकी चरण कमल कमल में ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग स्तुति आदि करते रहते हैं। चलो हम इसलिए कह रहे हैं सारे देव देवियों की आप ठीक ठीक से सम्मान करें, किसी को अवज्ञा मत करें, डिसनर मत करें, डोंट डिसनर एनीवन। सबके यथार्थ सम्मान, इसलिए हम कहते हैं जिवे सम्मान दिवे यानी कृष्ण अधिष्ठान। सबके हृदय में तो भगवान विराजमान है कि नहीं? और जो फूल भगवान के चरण में अर्पित हो जाता है वो भी हमारे मस्तक में रख होता है। बात ही सही है कि एक फूल यदि कोई भगवान के चरण में अर्पित कर दे उसके आप पैर नहीं रख सकते हैं। बात ही सही है कि नहीं है? क्यों? वो भगवान की अर्पित हो गए, भगवान के प्रसाद हो, उसके मस्तक पर हम धारण करते हैं। इसलिए सारे देव देवियां भगवान की आज्ञावाही सेवक कहा जाता है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लॉर्ड। जितने देव देवियां हैं भगवान की इच्छा से, भगवान के आदेश से सब पालन करते जा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं यार काली शिव दुर्गा हम क्यों करें, हम देख अनिष्ट है, किसी को मानते ही नहीं। किंतु हम शास्त्रकार मूर्ख है, लड़ पड़ते हैं, दूसरे की निंदा करते हैं। किंतु हमारे शास्त्र में कह रहे हरि रेवो सदारद्ध सर्वदेवी सरेश्वर इतरे ब्रह्मरुद्रद्दा नावज्ञा कदाचन। कोई देव देवी की निंदा मत करो, सबके सम्मान। किंतु यह जान हरि रेवो सदारद्ध, हमारे श्री हरि विष्णु भगवान कृष्ण राम है, विष्णु तत्व भगवान, ये हमारे आराध्य देव है। चलो आगे के भगवान के प्रति हमारे विश्वास, इसलिए श्रद्धा की इसलिए कहते हैं श्रद्धास्तु अनन्य वायु वर्जनम भक्तिमुखी चित्तवृत्ति विशेष। भक्ति उन्मुखी वृत्ति होनी चाहिए। कैसे ना? एकमात्र श्री हरि प्रसन्न हो तो सब प्रसन्न हो जाते हैं। तस्मिन् तुष्टे जगत तुष्ट। भगवान प्रसन्न हो जाए सब प्रसन्न हो जाए। जब प्रियतम प्रियतम जगत, और सब कुछ भगवान की तो है। ईशावश्य सर्वेदम जगत किंचन जगतम जगत तेने तक्ता भजिता महावृत कृष्ण शीतन। सब प्रभु का ही है, प्रभु सब कुछ दिए है। इसलिए श्रीमद् भागवत में जो बोलते जा रहे हैं एक ऐसे वस्तु के बोलते जा रहे हैं जो विशुद्ध भक्ति के बारे में बता रहे हैं। इसको कहा जाता है शुद्धा भक्ति। एक होता है कर्म मिश्रा भक्ति हो जाता है, एक ज्ञान मिश्रा भक्ति हो जाता है, और एक शुद्धा भक्ति। इसलिए हमारे रूप गोस्वामी पाद शुद्धा भक्ति के ऐसे सुंदर डेफिनेशन दिया
है अभूतपूर्व है। अन्नाभिलाषिता सुन्नम ज्ञान कर्मदनवृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा है। अनुकूल वही कृष्ण रोचमना वृत्ति होनी चाहिए। कृष्ण इंद्रिय सुख तात्पर्यमान ऐसे हृदय किसी प्रकार जो है कर्म ज्ञान योग तपस्या आदि के द्वारा अवृतमान किसी प्रकार हृदय में अन्नाभिलाषिता सुन्ना ज्ञान कर्म ध्यानावृतम अनुकूलमयी चेष्टा कृष्ण की इंद्रिय रोचमना वृत्ति जिसमें और भक्ति उसी प्रकार की हो जिससे निरंतर है सेवा वृत्ति हमारे है। जिस प्रकार यदि यदि शहद के यदि ऐसे जार से ऐसे डाल दिया जाए जैसे वो ऐसे एक लार्वा तार बन करके नीचे गिरता है, टूटता नहीं। ठीक उसी प्रकार भक्ति यानी सेवा निर्विच्छिन्न अविच्छिन्न तैल धारा की भांति हो है। भक्ति उसी प्रकार की चाहिए और एकमात्र कृष्ण में ही केंद्रीभूत होनी चाहिए। यदि देव देवी में हो जाए तो उसकी शुद्धा भक्ति में नहीं आएगी। शुद्धा भक्ति के बारे में हम अर्चना करते हैं एकमात्र गोविंद में होनी चाहिए, विष्णु एक अन्नाभिलाषिता सुन्न ज्ञान कर्माद्ध अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। हमारे रूप गोस्वामी पाद ऐसे सुंदर अनूठा डेफिनेशन दे दिया। यद्यपि भक्ति के बारे में तो अनेकों कथा बताया गया है, शास्त्र में दिया सा अनुरक्ति पराशरे इति भक्ति। भगवान में अनुरक्ति ही भक्ति कहा जाए। सांडिल्य सूत्र में कहा गया, भक्ति के बारे में अनेक कहा गया, किंतु ये शुद्ध भक्ति के बारे में हम आलोचना करते जा रहे हैं। हमें इसलिए कह रहे हैं ये श्रीमद् भागवत हमें क्या संदेश क्या दे रहे हैं, समाचार क्या दे रहे हैं, किसके बारे में हमें बताते जा रहे हैं। संग परात्पर पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारे कैसे एक ऐसे भाव उत्पन्न हो, जिस भाव को प्राप्ति करके सभी प्रसन्न हो जाते हैं, चित्त प्रसन्न हो जाते हैं। चित्त प्रसन्नता हमें दिखाई पड़े। भाई किसी की यदि भक्ति हो, भक्ति की यही होगा, चित्त प्रसन्न रहेगा, है कि नहीं? जिसके चित्त प्रसन्न नहीं है समझना चाहिए अभी उसकी शुद्धा भक्ति उदित नहीं हुआ। चित्त के इतना निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। हमारे चित्त दुखित कब होता है? इस संसार की वासना रहने से, काम क्रोध के द्वारा चित्त जब दूषित हो जाता है तब हम दुश्चिंता में पड़ जाते हैं। और जब समस्त प्रकार कामना वासना से निर्मुक्त हो जाते हैं और एकमात्र एकांतिक रूप में श्री हरि में ही हमें मन लग जाता है और कोई संसार की इच्छा नहीं रहता है, चित्त प्रसन्न रहता है उससे। सवै पुंसन परोधर्म जतो भक्ति अधोस्कल अहेतु की अप्रतिहता ज्ञात्मा संप्रसिद्धति। ज्ञात्मा संप्रसिद्धति, आत्मा प्रसन्न रहता है, चित्त निर्मल होकर रहता है। जिसके चित्त प्रसन्न नहीं है तो समझना चाहिए शुद्ध भक्ति नहीं आ रही है। क्यों? हमारे देखो ये जो मुखमंडल क्या है,
है, एक मिरार के बाद माने दर्पण के भांति है। हृदय में हमारी क्या वस्तु है वो अपने आप दर्पण में जैसे प्रतिफलित हो जाता है, रिफ्लेक्टेड हो जाता है? ठीक उसी प्रकार हमारे हृदय में क्या है नहीं है वो क्या है, मुखरूपी दर्पण में अपने आप दिखाई पड़ता है। हम देख अपने मुख तो मैं अपने देख नहीं पा रहा हूं, वो जो देखने वाला है उसको देख ले। देखो सबै पुंसांग परो धर्मो जतो भक्ति अधोस्खले, अहित की और अप्रतिहता। भक्ति की यहां पर दो डेफिनेट ये दे रहे हैं, एडजेक्टिव दे रहे हैं। अहित की होना चाहिए और अप्रतिहता, हेतु होना नहीं चाहिए। हेतु क्या है? कारण, कारण कॉज है। मंदिर में आए है, चौखट के मैंने दबाया, अब भगवान के पास कुछ मांग रहे, ये क्या है? कारण बन जाता है? भगवान के पास कुछ मांगना ही नहीं है। मांगना है तो एक ही मांग लो, प्रभु अपनी सेवा मुझे प्राप्ति हो जाए, बस सेवा मांग लो बस। और इस संसार में जितने प्रकार की वस्तु हम देखते हैं हेतु रहता है, कज रहता है, और जब हेतु नष्ट हो जाता है भक्ति, वो पृथ्वी नष्ट हो जाता है। थोड़ा इसके विचार करें, अमल करें। किंतु भक्ति के कार्य अहितु की, हेतु रहित, किसी प्रकार हेतु नहीं चाहिए, और अप्रतिहता, निरंतर अविच्छिन्न तैल धारावत, निरंतर हम सेवा करते हैं। भक्ति और कुछ नहीं है। भक्ति है क्या चीज? सेवा वृत्ति, भज्यते सेव्यते इति भक्ति। भक्ति के डेफिनेशन तो साधारण रूप में हम समझ ले इतना ही है, सेवा ही भक्ति है और कुछ नहीं। हम इस साधारण रूप में देखते हैं मातृभक्ति, पितृभक्ति, देशभक्ति। भक्ति क्या? सेवा, मातृ सेवा, पितृ सेवा, देशभक्ति, देश सेवा, इसको भी भक्ति हम जोड़ लेते हैं। किंतु ये भक्ति शब्द स्वीकार है अधोक्षज, भगवान श्री विष्णु में अधकृतम इंद्रिय ज्ञानम, अपराकृत इंद्रिय अधिपति श्री भगवान में ही सेवा वृत्ति जाए। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परित्रण निर्मलम हिसिकेनो हिसिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। देखो कितने सुंदर बता रहे। सर्वोपाधि, जितने प्रकार के डेजिग्नेशन जो है, उपाधि, समस्त उपाधि को हम क्या करना पड़ेगा? त्याग देना पड़ेगा। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परित्रण निर्मलम, इधर के काम क्रोध से निर्मल रखना पड़ता। सर्वोपाधि तत्पर निर्मल हिसिकेनो हिसिकेश, इंद्रियाधिपति स्वयं भगवान श्री हरि की सेवा कैसे होगी? अप्राकृतिक इंद्रिय आदि के द्वारा सेवा होती है। उसी की भक्ति कहा जाता है, उसी की सेवा कहा जाता है। सेवा वृत्ति जागे है हमारे पास, उसके जगाना पड़ेगा। जिल कहते हैं उत्थिष्ठ जागृत प्रप वरान निबोधत कृष्ण धारा निशित द्रुत्य दुर्गम पथस्तोत कवय बदंती। उपनिषद में कहा है उठो जागो, जगाओ, जागो और जगाओ है। अच्छा, इसमें महाप्रभु क्या बोले? जीव जागो, जीव जागो, गोरा जाम बोले, कत निद्रा जाओ माया पिशाची खल। एनेची औषधि माया नाशिवार लागी, हरिनाम महामंत्र लो तुम्हें मांगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की है। उठो जागो जीव, कब तक सोते रहोगे माया के गोद में है? पिशाचिनी माया है। माया के किसके साथ तुलना दे रहे? पिशाचिनी के साथ। जैसे किसी के ऊपर भूत सवार हो जाए ना, समझ में आ रहे? वो अपने नहीं बोलते, वो भूत अपने ही परिचय देते।
ऊपर से वो व्यक्ति तो बोल रहे हैं, किंतु वास्तव को परिचय कौन दे रहे? वो भूत। वो भूत को कैसे करना? भगाना है। और भूत को भगाने के लिए क्या चाहिए भाई? मोको चाहिए। हैं? सोरसू चाहिए, सोरसू है, सोरसू है ना, मशा से उसके मंत्र करके उसके ऊपर छोड़ दो, वो भूत भाग जाएगा। है। हाँ, हम लोग के वैष्णव मत के भूत के भागाने के लिए एक ही उपाय है, भगवत महाप्रसाद दे दो, निश्चय मंत्र जप करके महाप्रसाद दे दो, आएगा नहीं है, जीवन में कभी नहीं है। लास्ट टाइम मैंने एक घर में हवन कर रहा था, है, और उनके घर में उनकी बहन के ऊपर भूत सवार हो गए हमारे सामने, हम यज्ञ कर रहे थे, और वो 8-10 माताएं उसे पकड़ नहीं पा रही, वो ऐसे सब करके क्या क्या बोलते जा रहे। अच्छा चलो, निश्चय मंत्र और प्रसाद लेकर के उनको दिया, चले भूत इसी का। मैंने इसलिए कहा रहा था, ये पिशाची पाइले जन्म अति छन्न होय, मायाबद्ध जीवे से भाव उदय। संसार की जीव मायाबद्ध है, पिशाची नहीं, भूत हमें पकड़ करके रखा है। हम अपने स्वरूप की भूल करके बैठे हुए हैं। 3 प्रतिबंध हमें लगा हुआ है। एक है क्या? स्वरूप की उपलब्धि नहीं हो रहा है, हम है क्या चीज, हु एम आई, ये परिचय नहीं हो रहा है, जिसे कहते हैं स्वरूप भ्रम। देह जड़ दहित शरीर में आत्मबुद्धि हो रहा है, अहंकार में हम मत हुए हैं, थोड़ी सी ज्ञान लाभ कर लिया, हम सोचते हैं हम कितने विद्वान हो गए है। अल्प जल में जैसे छोटे छोटे मछली होता है ना, फर 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 करता रहता है, उसी प्रकार हमारी दशा है। इसलिए शास्त्र में कहा है ये हमारी अनर्थ है, हम पकड़ करके रखें। किंतु साधु गुरु वैष्णव के अनुगत्य में जब हम आ जाते हैं तो धीरे धीरे हमें स्वरूप की उपलब्धि हो जाती है कौन, हु एम आई, बताओ आप कौन है? जीवेर स्वरूप है कृष्ण मित्रदास। ये स्वरूप तो हमारे परिचय है, हम कृष्ण के दास है, कृष्णदास है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण मित्रदास है, दास दासित्व भाव है। इसलिए संसार की जीव त्रिताप में दग्धीभूत होती जा रही। चलो आगे की कथा। इसलिए इसमें कह रहे ये संत महात्मा के संग आदि के, ये श्रीमद् भागवत हम ये सब संदेश दे रहे हैं, ये मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं कृष्ण के दास हूं। गोपी भट्टुर पद कमलोर दासानुदास, इसकी हम उपलब्धि करना है, इसको रियलाइज करना पड़ेगा। यह हम वास्तव रूप में कि मैं जो दास, कृष्ण के दास बा दासी, ये उपलब्धि करना, और फिर धीरे 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 आगे जाकर के हम वो प्रेम को कैसे प्राप्ति करें। इसलिए श्रद्धास्तु अनन्यपाय वर्जनम भक्तिन्मुखी चित्तवृत्ति विशेषा इति श्रद्धा। श्रद्धा की डेफिनेशन का है इस श्रद्धा। इसके बाद साधु संग, काल मैंने कहा था साधु तो अनेक प्रकार के साधु, किंतु कैसे साधु संग कैसे करें? संसार में सभी कहेंगे तो हमें साधु, और साधु कौन है? चोर कहेंगे जहां मैं चोर हूं, आप बताओ,
है? ठीक उसी प्रकार साधु के लक्षण किसे कहा है? साधनति साधति इति साधु, जो साधन करते और साधन करके अपने वस्तु की उपलब्धि करते हैं, उसके साधु कहा जाता है। अथवा साधु जिनके चित्त समस्त प्रकार काम क्रोध से धूत हो गया, माने धो गया, माने निर्मल हो गया। साधु की अनेक परिभाषा है, डेफिनेशन तो अनेक है। इसलिए इसलिए रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं साधु संग सजातीय आशय सिद्ध सतो वरी श्रीमद् भागवतम नाम रस असत्य। सजातीय आशय स्निग्ध है और अपने से श्रेष्ठ संत महात्मा के संग करे। समान स्वजातीय समान भावना विशिष्ट होनी चाहिए। जैसे आप राधा कृष्ण के भजन करने वाले, राधा कृष्ण भजन करने वाले ऐसे उच्च कोटि संत महात्मा की संग करें। जैसे हमारे रूप सनातन है, सिर्फ रूप गोस्वामी पाद 13 कदम पर रहते थे, और सनातन गोस्वामी पाद पावन सरोवर नंदगांव पावन सरोवर पर रहते थे। और सनातन गोस्वामी नित्य प्रत्यह देखो रूप गोस्वामी के पास जाते थे, मिलते थे हैं? और उनसे हरि कथा आदि चर्चा करते थे। जिनकी हरि कथा सुनने के लिए स्वयं राधा जी ही साधारण गोप बालिका के रूप में आकर के बैठ जाती थी, हैं? केवल मैं खीर बना देती हूँ, हैं? कोई कथा आप लोग सुने कि नहीं सुने? राधा जी बोली, ए बाबा ये चावल ले लो, ये दूध ले लो, चीनी ले लो, खीर बनाओ। दोनों भाई रूप सनातन इतने कथा में मस्त है, उनको ध्यान नहीं दिया। राधा जी बोली ये तो बाबा जी है, तो कुछ करेंगे, हम बना देते। बैठ गई बनाने के लिए। देखो कथा सुनते रहे है। और रूप सनातन भी कैसी कथा बोलने शुरू किया, साधारण कथा नहीं है। सिर्फ गुरुदेव कहते थे, वही श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक जो है जन्मादस्य जतः अन्यादि तरतश्च, इसी श्लोक की व्याख्या करने लगे। कितना सुंदर जन्म आदि रस श्रृंगार रस है। रूप गोस्वामी बाद एक सुंदर अर्थ दे रहे हैं और सनातन गोस्वामी और एक अर्थ दे रहे हैं। दोनों भाई कितने सुंदर व्याख्या आदि करते जा रहे हैं, श्रृंगार रस की आलोचना होती जा रही है, और राधा जी उसके कितने आनंद उत्सव ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। खीर बनाना ये तो उनकी केवल बहाना मात्र है? किंतु देखो कथा सुनने के लिए है स्वयं राधा जी भी प्रकट हो जाता, वास्तविक सत्य है। इसलिए सजातीय आशय श्रिक्त अंतःकरण, आशय अंतःकरण, जिनके अंतःकरण इतने सुंदर निर्मल है, जिससे श्रीमद् भागवत में क्या काल में कहा था निर्मत्सनान शतान, निर्मत्स संत महात्मा की मुखारविंद से श्रवण होनी चाहिए। मत्सर पुराण नहीं, जिनके हृदय काम क्रोध आदि के द्वारा दूषित है, ऐसे संत महात्मा किसी नहीं, जिनके हृदय समस्त प्रकार संसार की वासना से निर्मुक्त हो चुका है, निर्मल चरित्र भावना है, और संसार में कुछ वस्तु के प्रति लालसा नहीं है। ऐसे संत महात्मा निर्मत्सनान शतान विद्वासमसुनतापुत्र श्रीमद् भागवत महामुनि कृते किंग व परिणिष स्वर्द हृदय अवरुद्ध कृति भी शुश्रु भी तत्क्षणात्। भागवत कितने सुंदर महिमा बता रहे हैं। बोले कथा सुनने के लिए केवल इच्छा प्रकट करें, शुश्रूषा मान सुनने की इच्छा, श्रवण इच्छुक कहा जाता है इसमें है। ये कथा मैं सुनने की इच्छा शुश्रूषा है। बोले उसी समय से भगवान उनके हृदय में बैठ जाते हैं, आरूढ़ हो जाते हैं, बैठ जाते हैं।
कितना सुंदर बता दिया। कोई भागवत की साधारण वस्तु नहीं है। इसलिए कह रहे हैं ये स्वजातीय आशय श्रिद्ध और सत्तो बड़ी सपन संत महात्मा बड़े मन श्रेष्ठ, उस श्रेष्ठ संत मुझसे समस्त प्रकार के श्रेष्ठ है। आज भजन में विज्ञों कहा गया है सब प्रकार की है। कितना सुंदर है। जैसे हमारे विष्णु प्रभु जी ने कहा, मेरा तो हृदय गदगद हो जाता है। किसी कथा सुनते हैं ना, मेरा बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है। अल्प समय में, छोटी अल्प समय में इतने सुंदर कथा को व्यक्त करते हैं। अच्छा लगेगा। अब कितने सुंदर सिन्नतांग सकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन है। इसी श्लोक के उत्तर आ रहे। कितने सुंदर श्लोक है। भक्ति भगवती नैष्ठिकी है। कितना सुंदर ये भावों की कितने व्यक्त होती जा रहे हैं। भागवत कथा में हमारी कैसे रुचि हो। सिन्नतांग सकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन कहते हैं। ये भगवान कहते हैं जो कथा जो सुनते हैं ना, मैं उनकी कानों के द्वारा उनके हृदय में प्रवेश कर जाता हूँ, हृदय में प्रवेश हो जाता हूँ। और उनके हृदय में जितने भी मैल है ना, सबको मैं क्या करता हूँ, नष्ट कर देता हूँ और स्वयं में बैठ जाता हूँ। जिस प्रकार कोई एक मित्र आपके घर में आए हैं और मित्र क्या करते हैं, मित्र आपको नहीं बोलते हैं, ये मित्र मेरे लिए एक चेयर दे दो। वो देख रहे तो अपने आप वो चेयर लेकर के वो साफ सुधार करके जैसे बैठ जाते हैं। एक मित्र दूसरे मित्र के आदेश नहीं देते हैं। क्षमा करें, कहीं आप लोग की कथा में कोई कष्ट ना हो जाए। मित्र कभी कहते नहीं है। मित्र क्या करते हैं, जहां पर सख्त भाव होता है, मित्र भाव होता है। तुम्हारे घर में चेयर दिखाई पड़ रहे, स्वयं चेयर लेकर के हैं। काल हमारे विष्णु प्रभु के मैंने देखा है, थोड़ा बहुत मुझे भी लगा। उन्होंने उनके चेयर लेकर के कोई ब्रह्मचारी बैठ गया। प्रभु जी ने किया, प्रभु जी ने मैंने देखा किया है। और उधर देखे घूम करके और एक चेयर लेकर के अपने बैठे और प्रसाद लिया, है कि नहीं। देखो मैं छोटी छोटी पुस्तक में देखता रहता हूँ, है कि नहीं। देखो कितने है। इसे कहते हैं महान है। मैंने देखा उन्होंने वो चेयर में बैठ करके प्रसाद पा रहे थे, शायद थोड़ा बहुत कुछ लाने के लिए गए थे और कृष्ण आकर के वो चेयर पर बैठ गए। उन्होंने यही नहीं कहा ये चेयर में तो मैंने बैठा था, हम होते थे तो ये मेरा चेयर है, तुम क्यों बैठ गए भाई। क्योंकि हमारे प्रभु देखो कितने, इसी कहते वैष्णवता है। हम सबसे शिक्षा लेते हैं और शिक्षा देते हैं। इसलिए कहा जाता है वैदिक कल्चर। व्हाट इज द वैदिक कल्चर। कहीं कहीं मैं शब्दों को भी थोड़ा बोलता रहता हूँ, लोगों की कष्ट होता है किंतु बोलना पड़ता है कि नहीं बताओ। है देखो प्रभु कितने महान उदार है। वो उदार घूम करके हमें सीनियर वैष्णव है। और मैं प्रसाद पा रहा था, मैं देख रहा था है। प्रभु ने किया कि फिर उधर घूम करके एक चाय पीने बैठे, नहीं बोला ठीक है। मैं इसलिए कर रहा, भगवान भी कैसे, उस भगवान कैसे उदार है। इस जगत में ऐसे वैष्णव जी उदार हो, उससे उदार कौन है, भगवान है कि नहीं है। अब बताओ, इसलिए भगवान कह रहे हैं इसी श्लोक में, हमारे टीकाकार कह रहे हैं सिन्नतांग सकता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन जब विदुती सुहित सतान। सुहित सतान भगवान के संत महात्मा की मित्र बता रहे। जैसे एक मित्र दूसरे मित्र के घर में जाते हैं, वो मित्र के कभी नहीं बताते हैं ये मेरे लिए एक आसन दे दो,
और आसन भी मिल जाए, वो कहते वो आसन में जो धूल लगा रहे वो कभी नहीं कहते हैं ये धूल को तुम साफ कर दो। वो स्वयं क्या करते हैं, जैसे स्वयं आसन के जैसे धूल झाड़ करके और बैठ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान परम उदार चित्ता। भागवत में तो अनेक श्लोक है महतम उदारम, टीकाकार कहते हैं। स्वयं भगवान क्या करते हैं, भक्त के हृदय में चले जाते हैं और भक्त के हृदय में जो भी मैल भी है, धूल है, वो क्या करते हैं, स्वयं भगवान साफ कर देते हैं, स्वयं सब कर देते हैं, घर स्वयं बैठ जाते हैं। देखो कितने सुंदर उदार चित्त भगवान है। इसलिए कहते हैं ये भागवत में हमें एक एक देते, इसलिए कहते हैं ये देखो सत्संग किसको कहा जाता है, साधु संग है। सजात्य आशय स्निग्ध है, सजते आशय स्निग्ध सतो वरी। श्रीमद् भागवतम नाम रस आस्वादते, भागवत की जो नाम रस महिमा आस्वादन करना है, कैसे ना, उसी प्रकार उच्च संत महात्मा की संग के प्रभाव से। जैसे मैंने कहा साधु तो बहुत है, कारण मैंने कहा था 3 प्रकार के साधु के बारे में हमारे आचार्य जो बात बताए। सर्वोच्च जो साधु, हाई क्लास एक्साल्टेड द डिवोटी ऑफ लॉर्ड, कौन है, भगवत पार्षद देह प्राप्त, साक्षात भगवान की जो पार्षद जिसको कहा जाता है, नारद मुनि भगवान के पार्षद है कि नहीं है? भगवत पार्षद देह प्राप्त, नारद ऋषि, नारद ऋषि के संग हो जाए बस, तो आपके तुम्हारी काम ही हो जाए, कुछ करना ही नहीं पड़ता। गुरुदेव का देते हैं, अरे महाप्रभु के जिसु के दर्शन कर करके बस हो गया। जहाँ गुरु दर्शन है ऐसी कृष्ण प्रेम, महाप्रभु के जितने लोग दूर से दर्शन कर गए उनके हृदय में कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो गया। महाप्रभु के चरण स्पर्श होने के साथ ही साथ शेर व्याघ्र क्या करे, कृष्ण कृष्ण बोली व्याघ्र नाचीते लागे है। चैतन्य महाप्रभु वृंदावन के ऊपर चल रहे हैं, झाड़ीखंड के रास्ता में बहुत घना घोर जंगल था, मध्य रात्रि में श्रीमान महाप्रभु गौर सुंदर है नाम करते हुए जा रहे। उनके पीछे उनके 2 सेवक थे, बलभद्र भट्टाचार्य और एक रसोईया ब्राह्मण था। झाड़ीखंड है ना बिहार, अभी तो हो गया क्या बोले, झारखंड हो गया ना अलग, हाँ झारखंड है, हाँ जी। शेर बाग जो सोए हुए विशाल से, महाप्रभु भाव में उन्मत्त होकर के चलने लगे, कृष्ण कृष्ण। शेर के पैर पे शरीर पर अपने पैर लगे और वो बाघ विशाल बैग और मुंह कैसे खोल दिया है। महाप्रभु ने क्या, कृष्ण कहो, इतना ही तो कहा महाप्रभु, क्या बोले, कृष्ण कहो। बोले कृष्ण कृष्ण बैल व्याघ्र नाचिते लागिला। महाप्रभु ने कहा कृष्ण कहो, कहने के साथ ही साथ वो शेर जो है सामने 2 जो पैर है ना ऐसे उठा दिए, पीछे के पैर से ऐसे बिल्कुल खड़े हो हैं, कृष्ण 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 करके नृत्य करना शुरू कर दिया। कृष्ण कृष्ण बोली व्याघ्र नाचिते लागिला। देखो सबके हृदय में प्रेम संचार कर दिया। पशु पक्षी महाप्रभु के समय जिन लोग ने जन्म लिया, जिन लोग ने दर्शन किया, कोई साधन भजन करना नहीं पड़ेगा, केवल दर्शन से है। जहां दूर दर्शन है ऐसी कृष्ण प्रेम है। क्षमा करें, हम तो सोचते हैं कहीं महाभागवत मिल जाए। अरे महाभागवत रहने पर तुम तुम्हारे लिए सौभाग्य नहीं हो, सुकृति नहीं हो, समझ नहीं पाएंगे। दुर्योधन भी तो भगवान को देखा किया कि नहीं किया, दुर्योधन कृष्ण के देखा कि नहीं देखा, किंतु उनके हृदय में प्रेम उत्पन्न नहीं हुई
रावण, कुंभकर्ण, असुर लोग भी तो भगवान को देखा, कंस भी तो भगवान को देखा, प्रेम उत्पन्न हुआ। क्यों? वो सुकृति नहीं। उसी प्रकार महापुरुष भी अपने पास भी रहे हो गए। इसलिए आप लोग धन्य हैं। जैसे गुरुपाद गुरु की आप लोग ने दर्शन किया, गुरुपाद की सेवा की है, इसलिए आप लोग धन्य है। कोई गुरुपाद में कोई साधारण नहीं थे, साक्षात रमण मंजरी, जिसके लिए साक्षात सेवा कुंज में राधा जी स्वयं सेवा कुंज के पुजारी के आदेश दिया, जाओ ये महाप्रसाद है, ये गोपीनाथ भवन में मेरा प्रिय सखी वहीं पर विराजमान है, उनके देकर के आओ। ये कोई झूठ मूठ कथा नहीं है, काल्पनिक नहीं है, दिस इज नॉट इमेजिनरी, हम साक्षी है। 10-11 बजे पुजारी आए, प्रसाद लेकर राधा जी साक्षात उनको हाथ दिया, बोले ये प्रसाद उनको देकर के आओ, अपने हाथ से देकर के आओ। देखो 11-11:30 बजे उल्लू करके आए, यही गोपीनाथ भवन में जहां पर गुरुदेव विराजमान थे। परिक्रमा के समय, हमारी कार्तिक परिक्रमा चल रही थी उस समय ना, गोपीनाथ भवन वृंदावन में 2008 में है। हाँ वही तो कह रहा हूँ, सेवा कुंज। देखो सेवा कुंज के पुजारी आज समझिए, हाँ, और ब्राह्मण लेकर के आए। और उस समय गुरुदेव की जो है नियम था, भोजन के बाद गुरुदेव विश्राम करे। हमारे माधव महाराज तो जानते हैं, ब्रह्मा जी भी आ जाए वो भी प्रवेश अधिकार नहीं। माधव महाराज जो गुरुदेव के ऐसे ये रखते थे, बहुत कड़ी नजर से रखते थे उनके शास्त्र के लिए। अच्छा ठीक, उन्होंने कहा जी मैं महाराज के साथ मिलना चाहता हूँ। बोल दिया ठीक है, 500 रुपया ले लो। ब्राह्मण लोग आते हैं कि इसलिए, पंडा लोग पैसा 1000 रुपया लो। बोले नहीं पैसा नहीं ले, मैं प्रसाद लेकर के आया देने के। अच्छा प्रसाद दे जा। बोले नहीं नहीं मैं अपने हाथ से मैं दूँ। बोले ठीक 4 बजे आइए। ठीक 4 बजे फिर पुनः वो ब्राह्मण आए, जाए गुरुदेव उठे और गुरुदेव दरवाजा खोले और वो सारी कथा को सुनाया। बोले और समय तो मैं पैसा लेता हूँ, ब्राह्मण हमारी तो काम यही है, हमारी खेती बाड़ी थोड़ी है ब्राह्मण का है? आप लोग इसी तो लेकर के हमें चलता रहता है, सीधी बात, निष्कपट रूप में है। किंतु आज मैं पैसा नहीं, ये राधा जी स्वयं राधा जी मुझे आदेश दिया, आदेश दिया, हे पुजारी तुम ये प्रसाद है आज इनके देखो, वो मेरा प्रिय। देखो हम उसमें गुरुदेव के सामने खड़े, आंखों से आंसू आ गए गुरुदेव के आंखों। गुरुदेव बिल्कुल जो है गंभीर हो गए है। हम गुरुदेव को मूर्ति को देखा है, गुरुदेव की आंखों से आंसू आए। हम लोग तो देखो कुछ भी कहे उस समय तो गुरुदेव के अगल बगल में हम रहने वाले थे। आज तो कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, नहीं कोई भी बात नहीं, चिन्ह पत्र की बात है, समझ में आ रही। क्योंकि उस समय गुरुदेव के अगल बगल में था हम लोग रहते हैं, चलिए कोई बात है। सामने में बैठना, अगल बगल में सब चल है। मैंने देखा और जब ये पुजारी जब सुनाया, गुरुदेव का आंखों से आंसू आ है। कुछ समय तक गुरुदेव बिल्कुल स्टांड हो गए, स्तब्ध हुए, जिसको कहा जाता है, स्थिर हो गए। देख फिर गुरुदेव है उस प्रसाद में जाए, फिर सबको बांटा। वास्तव वो प्रसाद इतने सुंदर स्वादिष्ट था, वो अनुभव के विषय। मैं इसलिए कह रहा था ये आप लोग अत्यंत सौभाग्यवान है, ये ऐसे राहज के खस कमरा है,
सखी रमन मंजरी, इसमें कोई संदेह नहीं है किसी प्रकार है। साक्षात रमन मंजरी, जिन्होंने साक्षात अपने हृदय धन को जो प्रकाशित किया, रमन बिहारी के रूप में ही प्रकट कर दिया। जो पुजारी है हाँ पिंटू भाई, हाँ इस बार मैंने जब किया वृंदावन में, हाँ तो वो कहते हैं बड़ी सुंदर बात बोली, लेकिन देखो आपके तो वो गुरुदेव हैं, आप तो उनका आदर करेंगे, परंतु हम जैसे ब्रज के लोग जिनको गुरु मानते हैं, तो आप देख लीजिए उनकी जो स्थिति बहुत विलक्षण है। वो कहते हैं कोई साधारण नहीं थे, वो वही बोल रहे थे इस बार, लेकिन वो ऐसा कहते हैं, ऐसा जो अनुभव था मुझे भी अपने जीवन में कभी नहीं हुआ कि स्वामी जी ने स्वयं आकर के कहा कि कोई लेकर के आओ। मैं वही बता कितना देखो, मैंने उसे कहा था देखो, एक शिष्य गुरु के प्रति एक स्वाभाविक रूप में श्रद्धा होना, ये स्वाभाविकता है, वो नहीं स्वाभाविक। और यदि नहीं वो तो शिष्य नहीं है, वो क्या होता है, शस्य होता है। शिष्य और शस्य, शस्य समझते हो, ग्रेन्स जो पशु खाता है। डू अंडरस्टैंड क्या बोला मैंने? एक शिष्य होता है, एक शस्य होता है। शिष्य सी माने तालु से सीखा देते ना, और शस्य लिख दो। शस्य माने ग्रेन्स, और ग्रेन्स कौन खाता है? पशु खाता है। जो शिष्य गुरु की सेवा नहीं करता, गुरु की भाव को अनुभव नहीं करता, वो शस्य है, माने वो पशु खाद्य खाया जाता है। कई जो व्याख्या करता है ऐसे करते हैं। मैंने इसलिए कहा स्वाभाविक रूप में शिष्य जो है गुरु के प्रति श्रद्धा रखना होती है, नहीं तो शिष्य कैसे कहेंगे? हैं? आप बताओ सही नहीं। किंतु देखो एक महान व्यक्ति और भी ब्रजवासी, ब्राह्मण ब्रजवासी हैं, जैसे हमें प्रभु जी कह रहे हैं, बात बहुत महत्वपूर्ण कथा है, गहरी कथा है, भाव गहरी है इधर तक है कि नहीं? आप बताओ है? ब्रजवासी ब्राह्मण, उन लोग के तो व्यवहार थोड़ा बहुत ऊपर से क्या होता है, रुक्ष होता है, रुक्ष नहीं थोड़ा क्या बोलते हैं, अटखट होता है ना, है कड़ा होता है। किंतु वास्तव ब्रजवासी के हृदय बिल्कुल नारियल के भांति अंदर में सख्त होता है, ऊपर में तो कट होता है। जैसे भी हो, हम इसलिए कह रहे हैं, इसलिए हम इसलिए गुरुदेव की महिमा कह रहे हैं। अब ऐसे महान गुरु की आश्रय लिया, ऐसे महान गुरु से आप मंत्र दीक्षा दे दिया, महान गुरु के अपने चरण स्पर्श किया, महान गुरु की अपने दर्शन किया, ये फल व्यर्थ नहीं जाएगा। हाँ, उतना ही आपको देखना पड़ता है, बस कहीं अपराध ना हो जाए, आज में कहीं अपराध ना हो जाए, बस उतना ही आपको देखना है। अपराध हुस्ती जैसे है ऊपर जगह पर चिन्हिता इतनी देर तक देखना है बस, और बाकी तो कुछ भी करे वो उठा ही लेंगे आप। महान गुरु के यही कार्य होता है। इस हमारे भक्त प्रकरण केशव गोस्वामी महाराज कहते थे, मेरे शिष्य भी नरक में जाए, कहीं भी जाए, उनके उद्धार के मिलते जितने बार जन्म है मैं उतना ही पर आऊंगा। कि गुरु के एक दायित्व होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, इसके प्रमाण कहाँ है? बृहद भागवतामृत में हम प्रमाण देते हैं, फालतू नहीं बोलते हम। संत गोप कुमार अपने जीवन चरित अपने शिष्य माथुर ब्राह्मण के कार्य, हे माथुर ब्राह्मण सुनो, मैं जब बोलो वृंदावन में चले गए तो मैंने क्या की कृष्ण के साथ गोचारण करने के लिए तैयार हो गया। कृष्ण भी मुझे बुलाया। अब बृहद भागवत ठीक से पढ़िए, ठीक से पढ़िए, देखिए हम जो कर रहे हैं हमारे कहीं भूल है, आपने भी सुधार कर दिए, क्यों नहीं करेंगे? पढ़िए अच्छी तरह से, वो लिख रहे हैं, सनातन से लिख रहे हैं। गोप कुमार कह रहे हैं, हे माथुर ब्राह्मण जन शर्मा सुनो, जब मैं गोचारण करने के लिए अपने सखाओं के साथ कृष्ण के साथ मैं ऑलमोस्ट चलना शुरू कर दिया है, और कृष्ण भी मुझे बुलाया है,
मैं चलने के लिए तैयार हूं। इतने समय राधा जी मुझे रोक ली। देखो, कृष्ण मुझे बुलाया, मेरे साथ चलो गोचारण करने के लिए, और मैं भी ऑलमोस्ट चलना शुरू ही कर दिया मानो, और इतने समय राधा जी आकर के मुझे बुलाया है। आज गोप कुमार के क्या नाम था? शुद्ध शरीर है, बोले नहीं, आज तुम गोचारण में मत जाओ, जाओ तुम्हारे शिष्य उसको लेकर के आओ, जना शर्मा के लेकर के आओ। देखो, और कह रहे हे मात्र ब्राह्मण जना शर्मा, मैं राधा जी की द्वारा प्रेरणा से, आदेश से मैं आया हूं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की है। गुरु कोई साधारण वस्तु नहीं होता है, गुरु उसी के कहा जाता है, सदगुरु है। किंतु विश्वास होनी चाहिए दृढ़ता के साथ है, दृढ़ता के साथ। इसलिए हमारे नातों के कारण है, निताई पद कमलो कोटि चंद्र सुशीतल जे छाया जगत जुड़ाए, हेनो निताई बनी भाई राधा कृष्ण पाई देना, दृढ़ करी धर निताई, दृढ़ करी वेरी टाइटली होल्ड द लोटस फीट ऑफ नित्यानंद प्रभु जाने अखंड गुरु तत्व है। अखंड गुरु तत्व, गुरु कोई एक साधारण ऐसे स्थूल शरीर नहीं है, गुरु तत्व एक विचार है। और रोज मैं थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं आ जाता है मेरे कथा में है, क्योंकि हमें गुरु के प्रति यदि निष्ठा नहीं हो तो भजन क्या करें है। पहले हमारे गुरु के प्रति प्रगाढ़ निष्ठा हो जाए। इसलिए आज एक कथा सुना था उनके घर में, एक भक्त भगवान को बोले प्रभु मुझे आप अपने धाम में लेकर के चलो। भगवान कहने लगे तू क्या मेरा क्या सेवा किया, बताओ, लिस्ट दिखाओ क्या क्या सेवा किया है, क्या सेवा किया तुमने? मेरा पैर दबाया नहीं, मुझे खिलाया पिलाया नहीं, मुझे काना कौड़ी दिया, दक्षिणा दी बोले नहीं। तो क्या करें, तुम सेवा नहीं किया, तुम कैसे जाओगे हमारे साथ, तुम कैसे ले जाएंगे? देखो उस समय वो कहने लगे प्रभु यदि मेरे गुरु पाद पद में तनिक भी सामान्य रूप में यदि निष्ठा हो जाए, मैं जीवन में थोड़ी सी भी कई गुरुजी की सेवा कर दी, उसके फलस्वरूप मुझे लेकर के चलो। देखो इस कथा सुन करके कृष्ण के हृदय द्रवीभूत हो गए। भगवान बोले अभी चलो मेरे साथ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की है। गुरु सेवा की महिमा इतने दिखा, इसलिए प्रहलाद महाराज कह रहे गुरु शुश्रूषा भक्ता सर्व लाभेन च संगेन साधुना ईश्वर आराधनेन च। श्लोक की याद रखिए, गुरु शुश्रूषा, गुरु सेवा से और कोई बड़ी सेवा नहीं है। किंतु गुरु सेवा कैसे होनी चाहिए? निष्कपट, निष्कपटे हनु दशा कवि हवे। मंगला कीर्तन है, छल कपट रहित होकर है। हम कुछ नहीं चाहते, गुरु प्रसन्नता हो जाए बस। भगवान प्रसन्न हो नहीं हो हमें कोई जरूरत नहीं, हमें एक ही लक्ष्य रखना क्या है, गुरुदेव प्रसन्न हो जाए बस, और कुछ नहीं जीवन में, कुछ नहीं चाहिए है। आज इसलिए मैंने यही कहा था आप लोग धन्य हो, ऐसे महान गुरु के अपने दर्शन किया, पर्सन किया, सेवा किया, जो जैसी सेवा किया कोई भी बात नहीं। भगवान सब तो भावग्राही जनन, भावग्राही जनार्दन है। इतने विशाल पुल बना रहे थे, नौ नील बंदर आदि जगह के बड़े बड़े पत्थर चट्टान आदि लेकर के बांध रहे थे हैं। और देखो छोटा से जो है गिलहरी, गिलहरी समझते हो, स्क्विरल पानी में गिर जाता था, और जहां जहां पर सुंदर बालू है ना, ऐसे लुटपुट खा करके और उस पत्थर पर आकर के ऐसे ऐसे झाड़ देते थे। देखो उससे देख करके हनुमान के क्रोध आ गया, तू क्या कर रही था, ये सेवा हो रहे। हनुमान उसको डांटने लगे,
और गिलहरी आकर के भगवान रामचंद्र के चरण में आकर के आ गई है। रामायण की कथा है वो किस वाल्मीकि रामायण किसी रामायण में है, मैं कथा सुनी है। देखो भगवान रामचंद्र ने क्या कि उस गिलहरी, छोटा है ना गिलहरी, उनके ऊपर हाथ ऐसे रख दिए। आज तक देखो है वो गिलहरी के ऊपर ना भगवान रामचंद्र के 5 अंगुली के छाप है, सफेद आप दिखाई पड़ेगी। हैव यू सीन और नॉट? है ठीक है ना है। वो डर से, गिलहरी छोटा है ना, भगवान रामचंद्र के चरण में आकर का आश्रय ले लिया और भगवान रामचंद्र उसके पीठ पर ऐसे थपथपाया और ऐसे रख। हनुमान कहने लगी ये क्या कर रहे हैं, हम लोग इतने बड़े बड़े पत्थर लेकर के यहाँ पर पुल बना रहे हैं, ये पानी में गिर जाता है और क्या दिखा रहे हैं, ये सेवा थोड़ी है। भगवान कहने लगे गिलहरी तुम बताओ क्या कर रहे थे? गिलहरी कहने लगे प्रभु ये पत्थर है ना, पत्थर के चट्टान अबड़ खबड़ है, अबड़ खबड़ से है। मैं थोड़ी जो जहां पर बालू जो है ना, स्मूथ बालू होता है, वहीं पर बालू के लेकर के आपके चरण में कहीं चुभे ना जाए। देखो भावक रही जनार्दन, भगवान रामचंद्र के आंखों से आंसू आ गए। सेवा है, कोई छोटी सेवा करे बड़े सेवा करे, भगवान वो देखते नहीं है। अपराध क्षमा करे। कोई कहता है मैं सबसे बड़ा सेवक हूं, मैं सबसे बड़ा सेवा की, ये अहंकार मात्र है। गुरु पाद पद्म भगवान क्या देखते हैं? हमारे भाव को दर्शन करते हैं। छोटी सी सेवा भगवान ग्रहण करते हैं। आप लोग समझ में आ रहे कि नहीं? आपकी सेवा कर रहे हो, ये मत सोचो जो वो बड़े बड़े सेवा करते हैं मैं बड़े सेवक हूं, ये अहंकार मात्र है। हमारे गौर बंधु से मान के लेक्चर सुन, सेवक उसी को कहा जाता है, वो सबसे सोचते हैं मैं तो कुछ सेवा ही नहीं किया। यू अंडरस्टैंड? जो जितने सेवा करते हैं वो कहते हैं हाय हाय मैं तो कुछ नहीं सेवा नहीं किया है। हनुमान के द्वारा एक हनुमान और गिलहरी इस प्रसंग से हमें शिक्षा दी है। भगवान रामचंद्र कहने लगे हनुमान देखो गिलहरी के भाव कैसे, देखो है मेरे प्रति कितने स्नेह ममता प्रीति है। जिसने जितना भगवान जिसने शक्ति दिया वो तो सेवा कर रहे है। जिसके भगवान जैसे शक्ति संचार करते वो कर रहे, हम नहीं कर रहे। गुरु पाद में भगवान हमें हृदय में शक्ति संचार करके करा। इसलिए रायरमंद संवाद में पहली श्लोक में है ना, है स्वयं महाप्रभु रायरमंद के हृदय में शक्ति संचार करके है। फिर उनके मुखारविंद से उनकी जो है भक्ति के बारे में सारे तत्व श्रवण कर रहे हैं। रामानंदादि भी मेघे है। देखो कितना सुंदर है। मैं गुरुदेव के बड़े सेवक हूं, मैंने सेवा किया, मैं करते रहता हूं। ये केवल अहंकार मात्र है। सबसे बड़े सेवक कौन है? ये गुरुपाद पद्म की ममता, गुरुपाद पद्म की जिसको प्रसन्न है। आज हम किस गुरुदेव इस कथा को सुना देते, एक रामचंद्र की कथा जब गुरुदेव बोलते थे ना, एक गुरु गिलहरी के प्रसंग सुनाते थे, हम कहां से सुने? देखो सेवा ही परम धर्म है। समय है, बहुत अच्छी बात है। इसलिए आप लोग धन्य हो है। ऐसे साक्षात राधारानी की आनंद क्या बोले रमन मंजरी गुरुपाद पद्म, उनकी जान में अनजान में जैसे भी हो दर्शन स्पर्शन सेवा, उनकी कथा आदि श्रवण, इससे और भाग्य क्या है? आप बताओ हैं क्या जी? वो तो कहते योग्यता बिचारी किसी नहीं पाई, तुम्हारे करुणा सा कोई बात है। गुरुपाद में कृपा कर देते हैं बस, गुरु कृपा ही केवलम, बस इतना ही हम कथा है। गुरु कृपा ही केवलम, गुरु की कृपा जिसको मिल जाता है और क्या रहा जाता है बताओ? है कि नहीं? राधा जी की भी मुसीबत करने वाले तो
रमन मंजरी है कि नहीं है? राधा जी की कृपा हम क्या करें? ये अनंत मंजरी, रमन मंजरी, कृपा मंजरी, इनकी कृपा हो जाए तब तो हम राधा जी की कृपा प्राप्ति करेंगे। बात ऐसी है, राधा जी डायरेक्ट इसको थोड़ी कृपा करेगी। ऐसे ऐसे गुरुपाद पद्म दर्शन, पर्शन, श्रवण, इसलिए कहते हैं ना, इसलिए कह रहे स्वजातीय आशय स्निग्ध सतुवरी श्रीमद् भागवत नाम रस थे पर वृंदावन बिहारी लाल हर गोविंद बल हरि गोपाल गोविंद गोविंद बल हरि गोपाल गोविंद राधारमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनहारी मेरो मेरो राधारमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनहारी मेरो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल प्रेमानंदे हरि जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। Thanks. Everybody, please give a big hand. I want to just say one thing for Maharaj is giving so beautiful Harikatha that touches our hearts, and I don't know how to really repay him. We cannot be paid by money. So we can only do some seva. That is what I think we should. And related to seva, I think some devotees here, I have seen they are very sevonmukh. They always are doing something in the kitchen or somewhere else. We need some of your help tomorrow. If you are available in the afternoon, we would like to get this front veranda and the east side veranda and the front to be washed and cleaned, because we have the annual festival coming up and a big festival on 2nd of July. So that will be very nice offering to the people. Thank you. Tomorrow's program is not in the evening. It will be in the daytime starting at 11. Maharaj's Katha will start around 11:45, 45 minutes or 30. well, no, we're We going to can- longer Katha. So 11:15 to 12:30, Maharaj will speak Katha, long time. But come at 11 o'clock tomorrow. There's no evening program. Maharaj will be giving Katha in the daytime. So 11 o'clock program starts, and then Katha until up to Aarti. 11:30 to 12:30. That's fine. Yeah. 11:30 to 12:30. Yeah. So 1 hour from 11:30 to 12:30. Then we'll have Arati, and then after that Prasad. And after that, we would need some of your help to Hare Krishna. जय सब कुशल है। जय जगन्नाथ।